Hello students, welcome to Europedia. I am Jitendra Tyagi and I am here to discuss about a lot of opportunities which are available for the students who did not qualify GATE this year, or who qualified GATE but who did not get a good score, or who did not get any MTech seat in any NIT till date. Okay, so this video contains a lot of important information. So to get that information you have to watch the video completely, then you will get a lot of information, as well as I will announce some good offer for all the students. Okay. So first of all we will discuss about some NITs which are conducting their sport round or special round drive for MTech admissions, and whose dates are nearby. Okay, so one by one we will take about many NITs I will cover in this single video, right? And I will give you some information so that you can easily apply and you can appear for the written test if there is any written test or interview. So all these things we will discuss in this video. Okay, so please watch it completely and get the information, and at last get the offer also. Okay, so first of all let us discuss about NIT Silchar, admission to MTech under self-sponsored full-time program. Okay, in NIT Silchar, right? NIT Silchar is a very old NIT and very good NIT, and it has very good NIRF ranking also. So you can check NIRF ranking of any NIT to get information, to get idea about the level of the NIT. Okay, so this is good. Now here they have announced self-sponsored full-time MTech. So one confusion which many students asked to us, that suppose someone joined some self-sponsored program in MTech. So is there any difference between the degree obtained under this self-sponsored category or under regular category? So there is no difference. Okay, degree is same. Once you join the college, placement opportunities are same. Okay, there is no difference. Everything is same. You will get the same degree and same placement opportunities. The only difference is that you may not get the stipend and your fee may be high. This is the main difference only. Okay, nothing else, right? So in NIT Silchar we have this session for special admissions. Now what is the eligibility criteria for that? 60% marks, and this will be common for almost all the NITs, 60% in BTech with some relaxation to SC/ST PWD students. So this is same for almost all the NITs, right? And there may be some additional condition applied by certain department of some NIT, okay, that you can check on the information voucher available. Okay, so this is the eligibility criteria. Now in this financial assistantship under self-sponsored category, no, you will not get any assistantship from the college, from the Ministry of Education if you join under this category. Okay, if you can afford without stipend, then you should join this program, right? And degree में कोई difference नहीं आएगा, placement opportunity will be same. So this is important point which you must know about. Now how to apply? So in NIT Silchar, if you want to apply in NIT Silchar, then you can download the application form from the link. Okay, in NIT Silchar website you can find this link also there. So you will download a PDF and fill the form completely, then scan that, okay, and email the scanned copy along with all enclosures, okay, all documents which they will ask, and don't forget to self-attested. Okay, so whenever you send the document through email or through post, always do the self attestation of the documents, don't forget. Okay, and you have to, here you need not to send the hard copy, you have to send the soft copy, you have to email that. These are the two emails. Okay, so on priority you have to send to this deanacd@nits.ac.in with a copy to this email ID, and this is to be done before 5 August. Okay, on or before 5 August. मतलब आज आपका 2nd of August है, तो 3, 4, 5 3 days you have. Before that you can email these your documents
and this completely filled application form. Okay, now in the email you have to write the subject line also. In subject line you can write application for MTech self sponsored full time category 2020 to 23. So whenever you email some documents or application form to any institute, so there is some subject, okay, clearly mention the subject to which you are applying, right? So this is the important information from NIT Silchar. How many departments you can apply? So when you will fill the form, so in that form MTech program applied, you have to write the name of the department, okay. So one application form for one department, right? Write down the name of the department here in which you are applying, and you can choose 3 specializations on the priority basis. Suppose you are from electronics and communication, you want to apply for electronics and communication department, you are interested in VLSI branch first, so first VLSI microelectronics and then communication signal processing, and third one if any there, okay. Same for other department, okay. So एक डिपार्टमेंट आपको एक डिपार्टमेंट का एक फॉर्म यहाँ पे अप्लाई करना है, सेपरेट डिपार्टमेंट में आप सेपरेट फॉर्म फिल कर सकते हो, राइट. एंड 3 चॉइसेस मैक्सिमम यू कैन गिव. देन रिटन टेस्ट और इंटरव्यू will be conducted between 11th and 13th of August. So note down this date. ठीक है, शॉर्ट लिस्टिंग जो होगी आपकी वो कब होगी? थ्रू ए रिटन टेस्ट. पहले तो शॉर्ट लिस्ट करेंगे, देन दे विल कंडक्ट ए रिटन टेस्ट और इंटरव्यू, ओके, बाय रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट ड्यूरिंग 11th to 13th August. So please keep checking the website of NIT Silchar for further updation. If they announce something, you have to check it. Then what are the programs available there in NIT Silchar in which you can apply? You can see department and the specializations. So in computer science department there are 2 specializations, CSE and artificial intelligence, okay. AI stands for artificial intelligence, the hottest branch of nowadays. So then electrical department is there and you can apply in 2 branches, control and industrial automation, and then power and energy system. In ECE this is your first priority and this will be your second priority, okay. And this is electronics and instrumentation. So there is one separate department for electronics and instrumentation in which specialization available is instrumentation engineering. So those from instrumentation or electrical or electronics who want to join this program, they can apply for this specialization. Separate application form will be required, okay. And then for civil, these are the branches. For mechanical, these are the branches available under the self-sponsored category in NIT Silchar, okay. And then let us move to NIT Sikkim, okay. So NIT Silchar में कब आपको अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, you can check all the details on the website also. Application form is available there and complete details are also available there, okay. You can apply, and please, if you don't have any sheet and you want to join MTech, then please apply, okay. Now let us talk about another NIT, that is NIT Sikkim. So I will discuss about many NITs in this single video. So this is very beneficial for you. Please watch it completely to get the required information, okay. So they call it as Institute Admission Test 2022 in NIT Sikkim, okay. There is a name for Institute Admission Test. Now category of admission. So there are 2 category of admission, category B and category C, okay. So this is category B, mainly for our student, okay, who are freshers or who have a gap of 1 or 2 years or 3 years, who want to join MTech regular program. So this is self-finance without scholarship, okay, matlab through IAT 2022. The institute take admission into category-wise vacant seats available in its MTech programs after completion of admissions by CCMT 2022. अब देखो यहाँ पे क्या है, सपोज देर आर सम वेकेंट सीट्स इवन आफ्टर CCMT राउंड 2. अगर राउंड 2 के बाद भी कुछ सीटें बच जाती हैं, राउंड 1 के बाद कुछ सीटें बची हुई हैं इनके पास, ठीक है. सो उनके लिए ये कंडक्ट करते हैं इसको, राइट. एंड नॉन गेट कैंडिडेट्स आर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई अंडर दिस कैटेगरी. सो आप लोगों के लिए जो विदाउट गेट कैटेगरी हम बोलते हैं कि बच्चों के लिए बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, सो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि जो आप विदाउट गेट है, यू डोंट हैव गेट वैलिड गेट स्कोर, even then you can get admission in MTech program in NIT Sikkim, okay. So non-GATE candidates can apply, right. And there is another category, that is category C, MTech sponsored without scholarship. So this is for working professionals who have minimum 2 years of teaching experience or industrial experience
okay, and they required degree, BTech degree or BE degree, and they can get no objection certificate from the employer. They can apply for MTech program, okay, जिनका भी कम से कम 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं इंडस्ट्री में या किसी इंस्टीट्यूट में, किसी कॉलेज में वो पढ़ा रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में, ठीक है, और 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं और आपका एम्प्लॉयर आपको एनओसी देने के लिए रेडी है, यू हैव टू आस्क फॉर एनओसी फ्रॉम देम, देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस NIT सिक्किम, ओके, इन योर डिजायर्ड ब्रांच, राइट। सो ये 2 कैटेगरी हैं। बाकी जो CCMT से एडमिशन चल रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ गेट, वो तो सेपरेट चल रहा है, ठीक है। उसके बाद बहुत सारी सीट्स कई बार वैकेंट हो जाती हैं, लास्ट मोमेंट में बच्चे कॉलेज ट्रांसफर करते हैं, सो उनको फिल करने के लिए ये कंडक्ट किया जाएगा आपका सेशन, राइट। नाउ what is the eligibility criteria? So same criteria is there, but some additional criteria they have mentioned here. Throughout in 10th 12th and qualifying degree, okay, 60% minimum और CGPA 6.5 out of 10। तो यहां पे इन्होंने एडिशनल क्राइटेरिया क्या लगा दिया कि 10th और 12th में भी 60% चाहिए, जबकि इन द प्रीवियस NIT जो हमने बात किया था सिलचर, they were only asking for BTech 60% in BTech, they were not concerned about 10th class percentage or 12th class percentage. So if you have less than 60% in 12th class or 10th class, you can apply NIT Silchar, you cannot apply this NIT Sikkim, okay. So every NIT has separate criteria for this, clear. Now percentage to CGPA conversion or CGPA to percentage conversion, all these details are available, okay. अगर आपको आपकी डिग्री पे मेंशन्ड है कि परसेंटेज कितना है, CGPA कितना है, दैट्स इट, आपको वो फिल करना है, ठीक है ना। और अगर रिलेशन नहीं मेंशन है कहीं पे और आप CGPA को परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हो तो इन्होंने फॉर्मूला दिया है अपना, ठीक है। इफ यू डोंट हैव फॉर्मूला, योर यूनिवर्सिटी हैज नॉट गिवन यू एनी फॉर्मूला फॉर कन्वर्टिंग CGPA इनटू परसेंटेज, सो इनका क्राइटेरिया क्या होगा, CGPA माइनस 0.5 इंटू 10, ठीक है। अगर आपका 9.5 CGPA है तो उसमें से माइनस करेंगे 0.5 आप, तो 9 और इंटू 10 तो 90%, ये आपको फॉलो करना है, ठीक है। देन what is the last date to apply? Okay, important point is last date to apply. So 12th of August you have time, 10 days time you have, okay, and when you will go to the website and you will go to this link, you can get the details, okay। ये लिंक आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको सारे डिटेल मिलेंगी और आपको MTech सेल्फ फाइनेंस में भरना है। जो स्टूडेंट्स है ना, जो वर्किंग नहीं है, उनको यहाँ पे क्लिक करना है और पहले पेमेंट करना है, ठीक है। फर्स्ट यू हैव टू डू द पेमेंट, तो पेमेंट कितना करना है वो सारी डिटेल आप ब्राउजर में पढ़ सकते हो यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद पेमेंट करेंगे, देन यू विल अप्लाई, यहाँ पे क्लिक करेंगे अप्लाई पे, देन यू विल फिल द डिटेल्स, राइट। और अगर वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, आप अगर स्पॉन्सर्ड कैटेगरी में जाना चाहते हो, 2 years एक्सपीरियंस यू हैव, देन आपको यहाँ पे पेमेंट करके और यहाँ पे अप्लाई करना है, राइट। Now program applied. So in this NIT we have 3 options actually, okay. When you will fill the form, there will be one option of program applied. So there will be 3 options: computer science and engineering, electronics and communication, electrical and electronics. So you have to choose any one of them at a time. एक बार में एक ही चूज करके उसको फिल कर सकते हैं। सेपरेट में अगर अप्लाई करना है तो आपको सेपरेट फॉर्म भरना पड़ेगा, ओके। वन एप्लीकेशन आपका एक डिपार्टमेंट के लिए, तो इन 3 में, ये 3 आपको ऑप्शंस में दिखाई देंगे, इनमें से आपको कोई एक चूज करके फॉर्म फिल करना है। नाउ फर्स्ट यू हैव टू पे एंड देन अप्लाई, ये पॉइंट मैं आपको बता चुका हूं। तो पेमेंट डिटेल में ये सारी चीजें आपसे मांगेंगी। ट्रांजेक्शन जब आप फॉर्म फिल करोगे, अप्लाई करोगे और वहां पे पेमेंट डिटेल आपसे मांगेगा, तो आपसे ट्रांजेक्शन नंबर जो भी होगा, तो जब भी आप पेमेंट करोगे ट्रांजेक्शन नंबर को नोट करके रखना है, ठीक है। और बैंक का नाम, अमाउंट कितना है, डेट ऑफ पेमेंट, और यहाँ पे उसको अपलोड करना है, फोटो को और सिग्नेचर को। ये सारी चीजें आपके फॉर्म के अंदर आएंगी। यू कैन इजिली डू दीज थिंग्स। नाउ व्हाट इज द शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया हेयर इन दिस NIT, ओके। NIT जो आपका ये है सिक्किम, इसमें शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया क्या है उनका। सो MTech प्रोग्राम में 10th क्लास की परसेंटेज को उन्होंने वेटेज दिया हुआ है 20% का, दैट इज वाई वो 60% का क्राइटेरिया उन्होंने पुट किया हुआ है। एंड 12th का 30% क्राइटेरिया है, वेटेज 30% है 12th की परसेंटेज को। ग्रेजुएशन को भी 30% का वेटेज है, ठीक है। और इसके बेसिस पे तो शॉर्ट लिस्टिंग होगी पहले आपकी, ठीक है। उसके बाद फिर जो इंटरव्यू होगा या रिटन एग्जाम जो भी ये कंडक्ट करेंगे, ऑनलाइन होगा यहाँ पे, ठीक है। ऑनलाइन इंटरव्यू और रिटन टेस्ट, उसके 20 मार्क्स होंगे, ठीक है। 20% की वेटेज होगी, मतलब उसकी 100 में से टोटल,
ओके तो अगर 20 मार्क्स यहाँ पे मिलते हैं, 30 यहाँ पे, 30 यहाँ पे, तो इंटरव्यू यहाँ पे होगा या रिटन होगा ऑनलाइन, मोस्ट प्रोबेबली तो इंटरव्यू ही होगा, तो इसके 20% का वेटेज रहेगा, 20 मार्क्स आपको मिलेंगे। ओके ये आपको ध्यान रखना है। नाउ यू नीड टू सेंड हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन। देखो इन प्रीवियस एनआईटी आपको हार्ड कॉपी को सेंड नहीं करना था एनआईटी सिलचर में, बट हियर यू हैव टू send the documents okay or application form to the respective department or NIT. Details आपको कहाँ पे send करना है, you will get it in the information voucher, you can check that, right? But ये आपको send करना है, ध्यान रखना है। Now vacant seats after CCMT special round 1 in CSC NIT Sikkim. One thing just I have taken for reference, you can do one thing, one important point. In some NITs, they have separate seats for self-finance category. Okay, if there is a self-finance category, so for that they have separate number of seats, fixed number of seats. Okay, and in some NITs, they just want to fill the vacant seat. Those will be vacant after CCMT. They want to fill those seats only. Okay, so here number of seats is not fixed. So if you are interested in this NIT, you can go to CCMT 2022 website and there you can check the vacant seat after special round 1. How many seats are available in any department of any NIT, you can check that information is available on the CCMT website, CCMT 2022. Okay, so I have taken this information from there and you can for reference see that in computer science engineering group 1 OBC category 4 seats are there. सेम ब्रांच ओपन कैटेगरी में भी 3 सीट्स वैकेंट है, ठीक है। पीडब्ल्यूडी में 1 सीट, एससी में 1 सीट, एसटी में 1 सीट, और स्पेशल राउंड 1 का जो अभी विड्रॉल चल रहा है, तो विड्रॉल हो रहा है तो बहुत सारे बच्चे भी विड्रॉ कर रहे हैं, सो ये बढ़ेगा अभी नंबर, इट विल इंक्रीज, ठीक है। तो स्पेशल राउंड 2 में फिर अनाउंसमेंट होगा, कुछ वहां पे अपग्रेडेशन होगा बच्चों का, तो उसके बाद फाइनली जो भी सीट्स आएंगी, ठीक है, ये आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी वेबसाइट पे, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। बट आपको अगर सीट नहीं मिली है, एनआईटी सिक्किम में जाना चाहते हो, प्लीज कीप चेकिंग इट एंड प्लीज अप्लाई, राइट। नाउ लेट अस सी अबाउट नेक्स्ट एनआईटी। सो सिमिलरली फॉर ईसी ब्रांच वी हैव नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल इन डिफरेंट ग्रुप्स कैटेगरी वाइज, and same for electrical engineering. So you can get this detailed information regarding every NIT, every branch, you can get the information from the CCMT 2022 website, right? Now come to another NIT, that is NIT Arunachal Pradesh. Okay, so I have earlier told you today that I will discuss many NITs. Okay, so एक अच्छा सेशन रहने वाला है आप लोगों के लिए, you have to stay here and keep watching this. So NIT अरुणाचल प्रदेश में क्या नोटिफिकेशन है, जस्ट रीड इट। एडवर्टाइजमेंट फॉर सेकेंड राउंड एडमिशन इनटू एमटेक प्रोग्राम, द NIT अरुणाचल प्रदेश इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर्म इंटरेस्टेड कैंडिडेट फॉर एडमिशन अगेंस्ट द वैकेंट सीट्स। सो हियर आल्सो दे डोंट हैव द फिक्स नंबर ऑफ सीट्स, ओके, फॉर दिस कैटेगरी, they are just filling the vacant seats after CCMT 2022 in regular MTech program. जो यहाँ पे वेकेंट सीट बचेंगी उनको फिल करने के लिए फॉर्म फिल करवाया जा रहा है, ठीक है। सो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में आपका यहाँ पे ऑप्शन है, ठीक है, फ्लड्स एंड थर्मल इंजीनियरिंग में ऑप्शन है, FTE में, रिन्यूएबल एनर्जी एंड एनर्जी मैनेजमेंट में, VLSI डिजाइन एंड एम्बेडेड सिस्टम में, और इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। सो दीज आर द ब्रांचेस दे आर ऑफरिंग MTech एंड वेयर वैकेंसी आर अवेलेबल। ओके, सो इनमें से आपको अपनी ब्रांच के अकॉर्डिंगली जो भी आपकी रिलेटेड ब्रांच है आपको अप्लाई करना है। लाइक इफ यू आर फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिकल, सो VLSI डिजाइन में आप अप्लाई कर सकते हो, या इंस्ट्रूमेंटेशन वाले बच्चे हैं, ठीक है, CSE में है तो CSE में अप्लाई कर सकते हो, मैकेनिकल के हैं तो थर्मल में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, या इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे मैकेनिकल वाले रिन्यूएबल एनर्जी में अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो NIT अरुणाचल प्रदेश को आपको अपने एक डायरी में नोट कर लो ये सारी इन्फॉर्मेशन, जो NIT में डिस्कस कर रहा हूँ, इन NITs की वेबसाइट को विजिट करो, ठीक है, ब्राउचर को रीड करो एक बार, और जहां जहां भी आप अप्लाई करना चाहते हो यू अप्लाई, राइट। सो हाउ टू अप्लाई इन NIT अरुणाचल प्रदेश, इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स may download the application form and submit the filled in application through mail. Okay. So यहाँ पे क्या करना है आपको, पहले एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना है,
उसको फिल करके वही स्कैनिंग करके ईमेल करना है और अपने एचओडी को मेल करना है जिस डिपार्टमेंट में आप अप्लाई करना चाहते हो, और उनकी ईमेल आईडीज आपको ब्राउचर के अंदर अवेलेबल है, ठीक है, दे हैव मेड अवेलेबल देम। और ये एक्टिविटी आपको करनी है बिफोर 9th अगस्त ट्यूसडे लेटेस्ट बाय 6 PM। तो ये डेट आपको इंपॉर्टेंट डेट है जो आपको याद रखनी है। 9 अगस्त को ट्यूसडे को शाम के 6 बजे से पहले पहले आपको ये मेल उनको करना है, अपना एप्लीकेशन फॉर्म विद डॉक्यूमेंट्स, और डॉक्यूमेंट को हमेशा सेल्फ अटैच करके ही सेंड करना है, ये आपको याद रखना है। ओके, तो अरुणाचल प्रदेश में जो भी बच्चा जाना चाहता है, और एनआईटी अरुणाचल प्रदेश इज अ गुड कॉलेज, सो यू कैन अप्लाई। Now selection procedure. Okay, so in NIT Arunachal Pradesh, what will be the selection criteria? It will be totally based on the written test followed by personal interview. So they will conduct a written test and then interview also, right? So this will be the criteria. Now GATE qualified students will be given preference. Suppose there is some student having valid GATE score, so that will be given some preference. However, GATE is not compulsory. ओके, तो अगर दो बच्चे हैं, गेट वाला और एक विदाउट गेट वाला, तो गेट वाले को प्रायोरिटी देंगे वो। बट अगर दो स्टूडेंट हैं, ठीक है, और दोनों में से किसी के पास भी गेट नहीं है, तो दोनों तब तो सेम तरीके से ट्रीट होंगे। सो फाइनल सिलेक्शन, या अगर गेट स्कोर है बहुत कम है और रिटन टेस्ट में विदाउट गेट वाले ने अच्छा परफॉर्म किया है इंटरव्यू में, तो फिर वो गेट की जगह उसको लेंगे, ये भी ध्यान रखना है। ओके, तो रिटन टेस्ट और इंटरव्यू और साथ में गेट का एक थोड़ा सा रोल इसमें रहेगा, बट नॉट कंपलसरी। तो विदाउट गेट वाले बच्चे, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो आईआईटी हैदराबाद तक में चले जाते हैं विदाउट गेट, तो यहां पे तो इजीली आपको कोई ज्यादा कंपटीशन नहीं मिलने वाला है। ओके, आपको नोट करना है सारी चीजें। दिस इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर डिफरेंट ब्रांचेस, सो दिस इज सेम, ठीक है, 60%, 6.5 CGPA, एंड SC/ST के लिए रिलैक्सेशन है, सो ये तो सेम ही चल रहा है। सम एडिशनल क्राइटेरिया कहीं कहीं पे आता है। दिस इज द लिंक ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म अरुणाचल प्रदेश का, आप इसको चेक करके और फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओके, नाउ कम टू NIT दुर्गापुर, एक वेरी गुड NIT, वेरी ओल्ड NIT, एंड देयर इज आल्सो वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कमिंग फॉर यू। ओके, सो लेट अस डिस्कस व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी इन NIT दुर्गापुर। जस्ट रीड द नोटिफिकेशन फ्रॉम NIT दुर्गापुर। एडमिशन टू MTech सेल्फ स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम, ओके, विदाउट स्कॉलरशिप, बिना स्कॉलरशिप के है और सेल्फ स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है, और NIT दुर्गापुर में है जो एक अच्छा NIT है। इसकी अगर आप NIRF रैंकिंग भी चेक करेंगे, दैट इज आल्सो ओके, एंड वेरी ओल्ड NIT है, और प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी इसमें रहती हैं। एंड दिस इज एडवांस एडवर्टाइजमेंट, मतलब अभी लिंक ओपन नहीं हुआ इनका फॉर्म फिल करने का, बट उन्होंने एडवर्टाइजमेंट पहले से दे दिया है उसके बारे में। सो व्हाट इज दैट? Based on the availability of vacant seats category wise after the conclusion of CCMT 2022, ठीक है, the institute will admit students without scholarship in the MTech self-sponsored program. Okay, the expected date of uploading the available seat matrix and full detail of advertisement on this web page is 5th August. तो इनका जो कंप्लीट नोटिफिकेशन है वो 5 अगस्त को आएगा, याद कर लो, नोट कर लो ये डेट। 5 अगस्त को आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ वेकेंट सीट्स अवेलेबल इन ईच कैटेगरी, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो सभी बच्चे जो NIT दुर्गापुर में जाना चाहते हैं एंड हु डिड नॉट गेट ए गुड सीट अप टू नाउ, वो सब नोट करके रखें इसको अपनी डायरी में, ठीक है। 5 अगस्त को भूलना नहीं है, NIT दुर्गापुर का नोटिफिकेशन रीड करना है और फिर इसमें अप्लाई करना है। Tentative schedule is also given. Last date of submission of application form by email, ठीक है, ईमेल से फिल करना है, ये भी सेम तरीके से। अगस्त 8 को शाम 4 बजे से पहले आपको फॉर्म फिल करना है। 5 अगस्त को ये स्टार्ट हो जाएगा, 5th अगस्त को, ठीक है, और उसके बाद 9th अगस्त को शॉर्ट लिस्टिंग आ जाएगी आपकी, और रिटन टेस्ट एंड वाइवा वाइज ऑनलाइन। दिस इज द गुड थिंग कि आपका रिटन टेस्ट और वाइवा जो होगा ऑनलाइन होगा, ठीक है, आपको वहां पे जाना नहीं पड़ेगा। रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में 10 अगस्त को होगा, नोट करके रखो, ठीक है, 10 बजे सुबह, मॉर्निंग में 10 बजे। तो ये इंपॉर्टेंट डेट आपको एक तो नोट करके रखनी है, रिटन टेस्ट कब होगा, ठीक है, और फाइनल जो रिजल्ट है आपका 12 अगस्त तक आ जाएगा। और एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी 1000 इन्होंने रखा हुआ है, ठीक है, तो ये 5 अगस्त को डिटेल आ जाएगा कैसे फिल करना है। और
क्राइटेरिया क्या रखा है इन्होंने, देखो यहाँ पे एनआईटी दुर्गापुर का जो क्राइटेरिया है, कैटेगरी अगर हम बात करते हैं ओपन कैटेगरी ओबीसी इन सब की, तो 10+2 में 60% चाहिए। ओके, नाउ देर आर टू सेपरेट कैटेगरी, तो क्राइटेरिया दोनों का अलग अलग है। गेट क्वालिफाइड बट नॉट अलॉटेड ए सीट थ्रू सीसीएमटी, मतलब आप गेट क्वालिफाइड हैं लेकिन आपको कोई सीट नहीं मिली है, तो आपको 60% और 6.5 सीजीपीए चाहिए बीटेक में, और वैलिड गेट स्कोर है आपके पास, आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। ओके, दूसरा, अगर आप नॉन गेट हैं, अब देखो नॉन गेट के लिए अपॉर्चुनिटी एनआईटी दुर्गापुर जैसे फेमस एनआईटी के अंदर, तो इसका मतलब विदाउट गेट में अपॉर्चुनिटी आती है। जो योरपीडिया के हम मेंटर सारे आपको बार बार बताते हैं, देर आर ए लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। ओके, हमें बस उनको चेक करना, एक्सप्लोर करना होता है। हम रिजर्व रहना चाहते हैं, चेक नहीं करते हम, तो कई बार हमारी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है। ठीक है, कई ऐसे बच्चे होते हैं कि जो लास्ट ईयर एडमिशन ले सकते थे, बट उनको पता ही नहीं है कि क्या क्या उनके पास ऑप्शन अवेलेबल है, उन्होंने नहीं लिया एडमिशन। ठीक है, तो यही चीजें हम आपको बताते हैं कि आप हमेशा अपने ऑप्शंस को ट्राई करो, राइट। तो यहां पे अगर आपका 7.5 सीजीपीए है और 70% मार्क्स हैं बीटेक में, ठीक है, ये तो आप अप्लाई कर सकते हो इस एनआईटी दुर्गापुर के अंदर विदाउट गेट में। विदाउट गेट, नॉन गेट मतलब बिना गेट स्कोर के यू आर एलिजिबल। SC ST के लिए 55% क्राइटेरिया 12th में, और बीटेक में भी 55% विद गेट, और अगर आप विदाउट गेट हैं और SC ST कैटेगरी के हैं तो आपको 7 सीजीपीए या 65% मार्क्स चाहिए बीटेक में। ओके, सो ये आपका क्राइटेरिया है एनआईटी दुर्गापुर में अप्लाई करने का। नाउ नेक्स्ट इज एनआईटी नागालैंड। अब मैंने जैसे कहा आपसे कि आज मैं बहुत सारे एनआईटीज के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है, स्पेशली जिन बच्चों को कोई सीट अभी तक नहीं मिली है और वो ऑप्शंस अभी तलाश में है अच्छे ऑप्शंस की, उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहने वाला है। ठीक है, तो एनआईटी नागालैंड में क्या है, द इंस्टीट्यूशनल लेवल स्पोर्ट राउंड एडमिशन फॉर द वैकेंट सीट, सेम कि जो वैकेंट सीट रहेंगी सीसीएमटी से, उनके लिए ये भी कंडक्ट कर रहे हैं। ठीक, और ये कब होगा, हेल्ड एट द इंस्टीट्यूट। अब यहां पे थोड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये 3 अगस्त से 5 अगस्त के बीच में है, मेनली 3 अगस्त को है। ठीक है, तो जो नागालैंड वाले बच्चे हैं ना, अब ये इसका बेनिफिट वो बच्चे उठा सकते हैं जो नागालैंड में ही रहते हैं, जो एनआईटी नागालैंड के आसपास के बच्चे हैं स्पेशली, और जो भी हमारी वीडियो देख रहे हैं। तो आप अगर एडमिशन चाहते हैं एमटेक में और आपके पास अभी कोई सीट नहीं है, देन यू शुड गो देयर एंड यू शुड ट्राई फॉर एडमिशन। ठीक है, और ये वेबसाइट है, यहां पे आप डिटेल में चेक कर सकते हो कि क्या क्या इंफॉर्मेशन यहां पे चाहिए। सो प्रोग्राम्स फॉर स्पोर्ट राउंड, एनआईटी नागालैंड में क्या क्या प्रोग्राम अवेलेबल हैं, एक बार उन पे नजर दौड़ा लेते हैं। प्रोग्राम्स ऑफर्ड, ये सारे प्रोग्राम है आपके पास, और डिपार्टमेंट कौन सा है। तो इसमें जो आपका सबसे फेवरेट है, मेनली इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन के बच्चों से रिलेटेड है, या कंप्यूटर साइंस से। ठीक है, मैकेनिकल के लिए तो यहाँ पे कुछ अभी दिख नहीं रहा है हमें। तो एमटेक वीएलएसआई में यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, स्पोर्ट राउंड में आपको एडमिशन मिल सकता है वीएलएसआई में इफ यू आर इंटरेस्टेड। और अगर सीएससी के स्टूडेंट हैं, कंप्यूटर साइंस में भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ठीक है, कोर इलेक्ट्रिकल में इंटरेस्टेड है, पावर सिस्टम में अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। सो ये प्रोग्राम है जहां जिनके लिए स्पोर्ट राउंड कंडक्ट किया जा रहा है 3 से 5। ठीक है, और इसका डिटेल में शेड्यूल क्या हुआ दिया हुआ है इन्होंने, ये एक बार चेक कर लेते हैं। कोई स्कॉलरशिप प्रोवाइड नहीं होगी बच्चों को। ठीक है, यहां पे ध्यान दो कि अगर आपको इसके थ्रू एडमिशन मिल रहा है ना, ये जो स्पोर्ट राउंड इंस्टीट्यूट कंडक्ट कर रहा है अपना, सो यू आर गेटिंग एडमिशन थ्रू दैट, यू विल नॉट गेट एनी स्कॉलरशिप इन दिस एनआईटी नागालैंड। ओके, ये एनआईटी नागालैंड ने क्लियर कर दिया कि भाई स्पोर्ट राउंड के लिए जो इंस्टीट्यूट कंडक्ट कर रहा है आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। ठीक है, और डिपार्टमेंट रिटन टेस्ट होगा, एडमिशन टेस्ट होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। शेड्यूल यहां पे लिखा हुआ है, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और वीएलएसआई के लिए तो 3 अगस्त को 10 बजे है, मतलब कल है 10 बजे। तो जो भी बच्चे वहां पे आसपास में हैं जो जा सकते हैं उनको ट्राई करना चाहिए। और कंप्यूटर साइंस का भी कल ही है, 3 अगस्त को है 10 बजे। ठीक है, आपको भी जाना है। और जो एमएससी वाले बच्चे फिजिक्स के लिए उनका 5 अगस्त को है। ओके, और 9 बजे आपको रिपोर्ट करना है एनआईटी नागालैंड की एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के अंदर। ये शेड्यूल नोट कर लीजिए, एंड प्लीज इफ यू कैन गो देयर एंड यू डोंट हैव एनी सीट, यू आर इंटरेस्टेड, then you should join. For the
details of this program, you can go to this link. Now NIT Jalandhar. So again we are discussing a very important NIT, very old NIT. It has record of very good placements. Okay, so what opportunities are there in NIT Jalandhar? First of all, to get the complete information, okay, this is the link. You can open this link and you will get the detailed PDF, right? Now how to apply and last date. So इसकी जो लास्ट डेट है वो है 5 अगस्त, 5 अगस्त, 5 अगस्त, ठीक है, तो जल्दी ही आने वाली है, तो आपको जल्दी अप्लाई करना है. The link to fill the online application form can be accessed through this. Okay, so online apply करना है, पहला पॉइंट हो गया मैं यहाँ पे. Please submit separate application forms if applying for more than one program. ठीक है, अगर आप डिफरेंट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो सेपरेटली ऑनलाइन अप्लाई करना है आपको. और पर प्रोग्राम जो एप्लीकेशन फी है दैट इज 1000. ठीक है, जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, और 500 एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए. और ये ऑनलाइन आपको पे करनी है फी. ठीक, एंड देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू सेंड द हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म टू द इंस्टीट्यूट. ओके, यहां पे ध्यान दो, 5 अगस्त है, मतलब आने वाला है, लेकिन ऑनलाइन फिल करना तो आज ही कंप्लीट कर सकते हो आप. इफ यू आर इंटरेस्टेड टू गो इन एनआईटी जालंधर, that is very good NIT, then you can fill the form today itself. Okay, and other details about this are selection criteria. So GATE qualified candidates shall be admitted without any entrance test based upon the GATE score. So they have announced 2 categories. यहाँ पे NIT जालंधर में 2 कैटेगरी हैं एडमिशन की, विदाउट गेट और विद गेट. ओके, सो विद गेट, गेट क्वालिफाइड, देन देयर विल बी नो एंट्रेंस टेस्ट. अगर आप गेट क्वालिफाइड हैं, आपका जो गेट स्कोर है उसी के बेसिस पे आपको मिलेगा. लेकिन जो नॉन गेट कैंडिडेट हैं, विदाउट गेट वाले, ठीक है, उनका क्या होगा, उनका एक टेस्ट होगा रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के द्वारा. ठीक, तो नॉन गेट के बच्चों के लिए, जिनके पास गेट क्वालिफाइड नहीं है, जो होपलेस बच्चे रहते हैं कई बार कि पता नहीं क्या कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उन बच्चों को एनआईटी जालंधर जैसे पुराने अच्छे एनआईटी के अंदर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अच्छी अच्छी ब्रांचेस ओपन हो रही है वहां पे, तो आपको इस अपॉर्चुनिटी को ट्राई करना चाहिए. राइट, सो यहां पे नॉन गेट एलिजिबल है एंड दे विल कंडक्ट ए टेस्ट. ठीक है, ध्यान रखना है. नाउ इन दिस एनआईटी जालंधर we have many departments, so I have not taken information of all. Many departments are there and that list is available, okay, on the link which I have shown here to you here. So you can check all the departments available and all the specializations. And one more important point, they have separately announced the number of vacancies, number of seats. Okay, so ये seats fixed and separately, clear, in each branch. You can see number of vacant seats in each branch, accordingly you can apply. So now what is the best thing? The best thing is that if you are interested in the most demanding specialization of today, that is artificial intelligence, then this is a very golden opportunity for all of you. That Center for Artificial Intelligence, there are 40 seats there. इसमें 40 seats हैं. ठीक है, और ब्रांच कौन कौन सी एलिजिबल है एआई के लिए? इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर, और एनी रिलेटेड ब्रांच, एनी सर्किट ब्रांच. अब सर्किट ब्रांच जानते हो कौन सी होती है? सर्किट ब्रांच बहुत सारी होती हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक सर्किट जिसने भी स्टडी कर लिया अपनी किसी सब्जेक्ट में, वो सर्किट ब्रांच कहलाती है. इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, ठीक है, इलेक्ट्रिकल, ट्रिपल ई, पावर इंजीनियरिंग, बहुत सारी ब्रांचेस हैं ऐसी. तो सारी की सारी सर्किट ब्रांचेस, ठीक, जिनमें सर्किट थ्योरी सब्जेक्ट होता है, एक तरीके से ये कह सकते हो आप, नेटवर्क थ्योरी, वो सारी ब्रांच के बच्चे इसमें एलिजिबल हैं. ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में. और कंप्यूटर साइंस के बच्चे और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बच्चे तो हैं ही एलिजिबल, उनके लिए तो होता ही है, लेकिन बाकी के लिए भी ये सबके लिए ओपन है. तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसमें आपको ट्राई करना चाहिए एनआईटी जालंधर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, बिकॉज यहाँ पे कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट का बहुत पहले से बहुत अच्छा प्लेसमेंट होता है. ठीक है, एक अच्छा एलुमनाई बेस है इनका.
फी कितना है प्रोग्राम का? तो एआई के लिए 90,000 फर्स्ट सेमेस्टर में है डे स्कॉलर के लिए, और हॉस्टलर के लिए 98,500। तो फीस भी कोई ज़्यादा नहीं है, इतना मतलब अफोर्ड कर सकते हो अगर आप, आपको ट्राई करना चाहिए, ठीक। और सभी कैटेगरी के लिए फीस सेम है, बिकॉज इट इज ए सेल्फ स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम, राइट। बट वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू, यू शुड ट्राई इट। नाउ अनदर interesting branch is VLSI design. Okay, most of the students of EC, EE, EEE, they are interested in VLSI design. So there are 8 seats available, 8 seats. Okay, और इसमें आपको सभी कैटेगरी के लिए फीस थोड़ा कम है, AI के कंपैरिजन में यहाँ पे फीस आपका कम है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। अगर आप VLSI इंडस्ट्री में जाना चाहते हो एंड यू वांट टू गेट ए गुड जॉब, देन यू अप्लाई दिस VLSI डिजाइन। This is the schedule. Last date for submission of applications 5th of August, ठीक है। डिस्प्ले आपका आ जाएगा 8 अगस्त को, और रिटन टेस्ट की जो डेट है वो क्या, 16 अगस्त, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप नोट करके रखो। और ये कहां पे होगा, रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में होगा, ठीक है, ऑफलाइन, राइट। 16 अगस्त को ऑफलाइन आपको रिटन टेस्ट के लिए जाना होगा। और एआई का सिलेबस आपको ऑलरेडी पता है, वीएलएसआई के लिए क्या पढ़ के जाना है वो आपको पता है, ठीक है। अगर आपको फिर भी नहीं कुछ क्लियरिटी है तो आप मेरे को कॉल करके पता कर सकते हैं। ओके, सो ये हमारी इंफॉर्मेशन जो मैंने शेयर की है आपके साथ, एंड आई हैव कवर्ड मेनी डिफरेंट एनआईटीज टुडे इन द सिंगल वीडियो। नाउ दिस इज द टाइम फॉर ऑफर। व्हाट ऑफर आई हैव ब्रॉट फॉर यू टुडे? सिंपल, जो स्टूडेंट्स हैं अभी तक जिनको कोई भी कॉलेज अभी नहीं मिला है, ठीक है, थोड़ा सा वो परेशान होंगे बच्चे ऐसे कि अभी तक कोई अच्छी सीट नहीं मिल पाई है, कहीं पर एडमिशन नहीं हुआ है, या दोज हु डिड नॉट क्वालिफाई गेट and who could not get admission in VIT Vellore or BITS or any other college, good college. So they are just seeking for opportunities. They want to join MTech program, okay, but they don't have any opportunity with them. So such students should apply these programs, and you can see in most of the programs, there is some interview, online interview or offline interview or written test. Two things are there, and which will play a very important role in your selection, ठीक है। तो अब बच्चे कंफ्यूज होंगे कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू। सो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है फ्रॉम द साइड ऑफ योरपीडिया एजुकेशन कि आपको एक नीचे लिंक में गूगल फॉर्म दिया गया है, यू फिल दैट फॉर्म एंड देन यू विल गेट एक्सेस फॉर स्नैप इंटरव्यूज, सब्जेक्ट वाइज स्नैप इंटरव्यूज, ओके। सो इस गूगल फॉर्म को भरो, देन एग्जीक्यूटिव आपको कॉल करेंगे या आप उनको कॉल करो, और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, इसका कोई आपको पेमेंट नहीं लगेगा, फ्री है आपके लिए। आपको कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ स्नैप्स जो हमारे मॉड्यूल में हम बच्चों को देते हैं, ठीक है, स्नैप इंटरव्यूज, वो आपको फ्री मिलेंगे, जिसमें आपको प्रॉपर गाइडेंस भी साथ में मिलेगा, फीडबैक कि भाई आपके पास लिमिटेड टाइम है, ठीक है, विद इन नेक्स्ट 15 डेज ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग टू हैपन, ओके। तो नेक्स्ट 15 डेज के अंदर ही आपको अपना जो भी प्रिपरेशन किया हुआ है आपने उसको रिवाइज करना है, और अपने इंटरव्यू के लिए आपको तैयार करना है खुद को, ठीक है, क्योंकि ब्लैंक होके जाने से तो कोई फायदा नहीं होगा। तो आपके लिए फैसिलिटी है कि आप अपनी डिटेल सेंड कीजिए गूगल फॉर्म के अंदर, और एग्जीक्यूटिव आपको कांटेक्ट करेंगे। अदरवाइज आप कांटेक्ट कर सकते हैं योरपीडिया को कि सर CCMT का जो ये अभी स्पेशल राउंड होने वाले हैं रिमेनिंग NITs में, ठीक है, तो उनके लिए मैं इंटरव्यू की गाइडेंस लेना चाहता हूं कि इंटरव्यू को कैसे प्रिपेयर करूं। तो आपको मेंटर के साथ कनेक्ट किया जाएगा, उनके नंबर दे दिए जाएंगे आपको, या एक व्हाट्सएप ग्रुप जो भी बनाएंगे उसमें आपको इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी, और आप स्नैप इंटरव्यू अपना लगवा सकते हो, ठीक है। स्नैप इंटरव्यू लगाने से बहुत फ़ायदा होता है बच्चों को, क्योंकि अगर आप इंटरव्यू के पहले से प्रैक्टिस कर लेंगे और मेंटर आपको गाइड कर देंगे कि क्या क्या आपको इम्प्रूवमेंट करने हैं, या कौन से टॉपिक्स ज़्यादा प्रिपेयर करके जाने किस ब्रांच के लिए, तो ओबियसली आपको फ़ायदा होगा इससे। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे परेशान हैं थोड़ा, उनके लिए हमने ये अनाउंस किया है। सो प्लीज़ आप इसका फ़ायदा उठाइए, और जो भी बच्चे हैं मतलब एक बार ट्राई कर लो, बाद में अगर आपको एडमिशन लेना नहीं लेना ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, बट अगर अपॉर्चुनिटी है आपके लिए तो आपको ट्राई करना चाहिए, ओके। सो प्लीज़ फिल द गूगल फॉर्म, सेंड योर डिटेल्स,
and get the golden benefits of the golden opportunity and this offer from Yourpedia Education. ठीक है, लिमिटेड टाइम के लिए नेक्स्ट 15 डेज या 20 अगस्त तक मेरे को लगता है कि सारे ये स्पोर्ट राउंड एंड हो जाएंगे, जो भी इनके रिटन टेस्ट या जो भी होने, तो तब तक के लिए आपको स्नैप इंटरव्यूज़ की फैसिलिटी, ठीक है, प्रोवाइड की जाएगी। टेक्निकल इंटरव्यू, मैथमेटिक्स के इंटरव्यू, जो भी वहाँ पे रिक्वायर्ड है, और गाइडेंस उनका कि भी क्या क्या सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करके जाना है किस ब्रांच में, ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम द साइड ऑफ Yourpedia Education. Okay, so I wish you all the best and I hope you like these things which I have discussed.